Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss review of today's RBI Grade B examination. Now, as for the information I have gathered from our candidates, the paper was tough. If somebody is saying it is moderate, I don't agree with that person. Paper was really tough. And tough paper means it will be difficult for people to score high. Many of you have mentioned that I have attempted around 80, even lesser than that, some maybe higher than this. Reasoning was tough. Quantitative was lengthy. English was easy. General awareness was deep. Now, one of our subscriber mentioned, sir, the people those have read extensive from Cloud Affairs, they could score good questions. Again, around 60%. Some people could not figure out what was the source. So overall, we will say the exam was tough. And all sections were tough, and some people are even saying the phase 1 was a trailer of phase 2. And it was tougher than last year. And this tells you how competition is shaping. And that's why I always say focus on 6 examinations, 2 from SBI, 4 from IBPS. That can provide you a job. A competition like RBI is not easy to crack. So if you are asking me what is your take on cutoff, I will not give any figure. If you ask me what is your advice, should we prepare for phase 2 or wait for the result, it is your choice. Because despite tough examination, some candidate might have done exceedingly well. And that can change the scenario for average candidates. So the race is wide open, very, very difficult to predict cutoff, because in tough papers where vacancies are less, most people may be at the lower end, but the few bright candidates can take up the cutoff high. So let's hope cutoff is moderate, but it is very difficult to predict, very, very difficult to predict. And I will not enter into any figure because that will unnecessarily demotivate some people or may hamper their study. So there is no harm in preparing for phase 2 if you have done reasonably well. But if you have not done reasonably well, it is better to focus your energies on easier examination that is round the corner now and you can get the job. So I am keeping the options wide open to each one of you. This is an examination where it is very difficult to predict any number. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ. आप में से कुछ कैंडिडेट की ये चाहत थी कि एक रिव्यू इस पे बनाया जाए और एक लाइकली कट ऑफ की बात की जाए. अब आप ये देखिए, आज का पेपर अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको टफ कहा जाएगा. कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि फेज 2 टाइप का पेपर फेज 1 में ही आ गया. तो ये जो शब्द हैं ये अपने आप में इस बात को शो करते हैं कि पेपर को कोई व्यक्ति मॉडरेट नहीं कह सकता. यदि कोई व्यक्ति कहता है ये मॉडरेट टू टफ था, तो मैं इतनी आसानी से एग्री नहीं करता इस बात के लिए. मेरे हिसाब से जो लोगों ने मुझे फीडबैक दी है वो टफ ही है.
और लोगों की अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं हुई है। उसका कारण क्या था? एक तरफ तो टफ था एग्ज़ाम और एक तरफ लेंथी था। अब जैसे रीजनिंग था, अधिकांश लोगों का कहना है कि बहुत टफ था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, काफ़ी लोगों का कहना है लेंथी था। जनरल अवेयरनेस बहुत डीप डाउन नॉलेज से आई है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर क्लाउड अफेयर्स से मुझे हेल्प मिली, क्योंकि जिसने डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ी थी वो अटेम्प्ट कर पाया, पर जिसने उसमें से पॉकेट पीडीएफ की मदद ली या कैप्सूल्स को देखा उसको शायद इतनी मदद नहीं मिली है। तो जो अधिकांश लोग घबराए हुए हैं जनरल अवेयरनेस में कि कहाँ से आ गया, उसका कारण यही है कि उन्होंने कैप्सूल्स और वन लाइनर्स का सहारा लिया। जबकि मैं हर वीडियो में आपको ये कहता आ रहा हूं कि आपने मंथली स्टडी पीडीएफ डिटेल्ड वाली पढ़नी है। आजकल सभी एग्जाम में बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां तक करंट अफेयर्स का सवाल है, तो इसको हमें सोच के जाना है। फिर इंग्लिश को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इंग्लिश के बारे में काफ़ी लोगों का मानना है कि ये स्कोरिंग था, आसान था और इसमें जीत पाएंगे। अब अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, कुछ लोगों ने कहा सर 80 अटैम्प्ट हुए हैं, कुछ के 81 हुए हैं, कुछ के उससे कम हैं, कुछ के उससे ज़्यादा हैं। मगर क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती है इसके अंदर और एग्ज़ाम था टफ, तो होता गया अधिकांश लोग तो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ऐसे एग्ज़ाम में। तो उससे ये लगने लगता है कि शायद कट ऑफ नीचे चले जाए। मगर ऐसे एग्ज़ाम्स में कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउटशाइनिंग होते हैं। वो उनको जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे दो उसके अंदर वो आउट परफॉर्म कर पाते हैं। अब क्योंकि कम लोगों को शॉर्टलिस्ट करना होता है, तो ऐसे कैंडिडेट कट ऑफ को ऊपर भी ले जाते हैं। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम जहां वैकेंसीज कम होती हैं उसमें कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए हम कोई कट ऑफ की प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये देखने वाली है कि क्या हमें फेज़ 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी एडवाइस हमेशा कैंडिडेट्स को होती है, यदि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो आप फेज़ 2 की तैयारी करिए, क्योंकि कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। पर यदि आपको लगता है कि मेरी अच्छी नहीं रही है परफॉर्मेंस, तो फिर फेज़ 2 में टाइम लगाने की बजाय आपको एनर्जीज लगानी चाहिए 6 इजी एग्जाम्स की तरफ। 2 एग्जाम स्टेट बैंक के और 4 एग्जाम IBPS के। उसके लिए हम डेली वीडियोस भी डाल रहे हैं। RBI एग्जाम हमेशा ही टफ होता है, और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो रही है तो आप देखेंगे अधिक से अधिक लोग इन जहां पर अपॉर्चुनिटी है उन एग्जाम्स की तरफ आ रहे हैं, और वो इस कंपटीशन को और टफ बनाते चले जा रहे हैं, और एग्जामिनर भी पेपर को टफ करता चला जा रहा है, क्योंकि अब उसको चुनना है। तो नेचुरल है, जब तक वो टफ नहीं करेगा तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती चली जा रही है। तो अब आप अपनी वैल्यूएशन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो फिर फेज़ 2 के लिए आप और एनर्जीज मत लगाइए, और अच्छा है टाइम रहते आप ऐसे एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट कर जाएं जहां वैकेंसीज भी ज़्यादा होंगी और आपके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी अच्छी होगी। RBI ग्रेड B में हमेशा से ही बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंसी ही कम है। ये आपको मान के चलना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।